Welcome to my class. Dear students, today we are going to see the explanation of 8th standard's poem 2.3 The Little River. It is written by Rabindranath Tagore. First of all, I will read the whole poem, then we will see the poem stanza wise, line to line and word to word. The Little River. Our little river, it meanders along. In summer the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep, no sign of slime, the sands shine bright. On one shore, cash fields blossom white, chirping mynas through that sight. The jackal's howl is heard there at night. Across lie groves of mango and palm. The village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. At dusk and dawn, once their bath is done, they deep wash clothes to trap small fish. To their household tasks the boys return, having used river sand to scour each dish. In Ashad, clouds gather, the water rise, the rivers in spate, the current grows strong. The air is rife with babbling sounds. As the muddy torrent swells along, the woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. Now we will see stanza wise explanation and word to word meaning. Our little river, it meanders. Meanders means flow with twists and turns. मोड़ बनाते हुए बहना. नी का मतलब होता है घुटना. ईज का मतलब होता है आसान. In first stanza, here the poet Rabindranath Tagore describes the little river that flows with twists and turns in summer season. The water in the river is not so deep, it's only knee deep. Hence, cows and carts can easily cross the river. The banks of the river are very high but not very steep to climb for the animals. पहले स्टांजा में शायर ने बयान किया है कि छोटी नदी गर्मी के मौसम में मोड़ बनाते हुए बहती है. नदी में पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ घुटने इतना ही गहरा है. यानी जो पानी की मिक़दार है वो सिर्फ घुटने इतनी ही है. इसलिए जो गाय और बैलगाड़ी है वो आसानी से नदी पार कर सकती है. बैंक्स का मतलब होता है यहाँ पे किनारा. जो नदी का किनारा है वो बहुत ऊंचा नहीं है और ना ही ज़्यादा ढलान है. जो जानवर है उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं. यानी जानवरों के चढ़ने के लिए जो नदी का किनारा है वो ऊंचा तो है लेकिन ढलान नहीं है. सेकेंड स्टांजा. नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड्स शाइन ब्राइट. On one shore cash fields blossom white, chirping mynas through that sight. The jackal's howl is heard there at night. Slime means thick slippery substance, उर्दू में जिसको कीचड़ कहा जाता है. सैंड का मतलब है रेत और शाइन यानी चमकना. काश मीन्स टॉल ग्रास विथ वाइट फेदरी फ्लावर्स. और चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाट और हाउल जो है वो गिदड़ की आवाज़ है. इन सेकेंड स्टांजा द पोएट सेज इन समर सीजन द रिवर हैज़ वेरी लिटिल वाटर. बैंक इज नॉट एट ऑल बडी सो वाटर लुक्स वेरी क्लियर. देयर इज ओनली सैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दैट सैंड्स ब्राइटली. ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर देयर आर काश फील्ड्स मीन्स देयर grows tall grass with white feathering flowers. Further, poet says,
At daytime, we hear chirping sounds of mynas, and at night we hear jackals howl. सेकेंड स्टांजा में शायर ने बयान किया है कि गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है, वहाँ कोई कीचड़ नहीं होता, पानी साफ और शफाफ नज़र आता है, जिसकी वजह से उसके तह में बैठी हुई जो रेत है वो चमकदार दिखाई देती है, रोशन हो जाती है। काश ये जो ऊंची घास है और इस पे सफ़ेद कलर के फूल जो है खिलते हैं। दरिया के एक जानिब मैना की चहचहाहट सुनाई दे रही है, तो रात के वक्त गिदड़ की आवाज़ सुनाई देती है। थर्ड स्टांजा, अक्रॉस लाई ग्रोव्स ऑफ मैंगो एंड पाम। ग्रोव्स का मतलब होता है कतार, पाम का पेड़ यानी कि खजूर का पेड़। द विलेज प्रीस्ट्स डुवेल इन देयर कूल शेड। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, डुवेल यानी रहना, कूल शेड यानी ठंडी छाँव। गर्ल्स एंड बॉयज बेथ ऐसे BATH, बात यानी नहाना, ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे BATHE बेथ ये वर्ब है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। क्लोज टू द बैंक, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक, और बैंक यानी कि किनारा, नदी का किनारा। स्प्लैश पानी छिड़कना। गमचाज थीन कॉटन टॉवेल्स, जो बारीक टॉवेल आता है उसको गमचास कहते हैं। एरवेट का मतलब है वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट डीप, पानी में चलना जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा ना हो। इन थर्ड स्टांजा, पोएट सेज दैट across the river there is the groves of mangoes and palm trees. The village priests dwell in the cool shade of trees. Boys and girls enjoy river water. They splash water with their gamchas while walking through the knee-deep water. दरिया के किनारे आम और खजूर के दरख्तों की कतार है। गांव का पुजारी ठंडी छांव में रहता है, यानी उस छांव में बैठता है वो। लड़के और लड़कियां पानी से लुत्फ़ उठा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और वो घुटनों के इतना जो पानी गहरा है उसमें से गुज़र रहे हैं, और जो गमछा है उससे पानी एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज़ डन। देखिए यहाँ पर हमको फ़र्क नज़र आ गया है, बाथ और बेथ, BATH bath and BATHE bathe. At dusk and dawn, once their bath is done, they deep wash clothes to trap small fish. To their household task the wives return, having used river sand to scour each dish. Wash clothes का मतलब होता है स्मॉल क्लॉथ फॉर वॉशिंग फेस, यानी कि जिसको हम छोटा तवलिया बोलते हैं ना, चेहरा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। स्कॉवर का मतलब होता है स्क्रब, यानी कि किसी चीज़ को घसना। इन द फोर्थ स्टांजा द पोएट वांट्स टू से दैट दे टेक बाथ इन द रिवर वाटर मीन्स दे बेथ 2 times a day. After bath they dip their wash clothes to walk to catch the small fish. In the evening women came to wash the utensils on the river bank. They use river sand to scrub the utensils. चौथे स्टांजा में शायर हमसे कहना चाह रहे हैं, वहाँ के लोग हैं या लड़के लड़कियाँ हैं वो सुबह और शाम नहाते हैं। इस तरीके से वो दिन में 2 बार नहाते हैं, और नहाने के बाद जो वो टॉवेल की तरह स्मॉल क्लॉथ फॉर वॉशिंग फेस, यानी कि जो छोटा कपड़ा होता है उससे वो मछलियाँ पकड़ते हैं। टू ट्रैप, ऐसे ट्रैप का मतलब होता है जाल, और टू ट्रैप यानी पकड़ना। तो पकड़ने के लिए उस टॉवेल को वो डिप करते हैं, डुबोते हैं, और जो औरतें हैं वो अपने घर के काम जैसे कि कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, वो नदी के किनारे पे शाम में वो काम करते हैं, और बर्तनों को वो सैंड से स्क्रब करते हैं,
जो नदी की रेत होती है उससे वो घिसते हैं। स्टांजा नंबर 5, इट्स लास्ट स्टांजा। In Ashar, clouds gather, the water rise, the rivers inspect, the current grows strong, the air is rife with babbling sounds, as the muddy torrent swells along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. Clouds means बादल. Inspect का मतलब होता है a sudden flood in a river. अचानक नदी में तूफान आना या पानी बढ़ जाना। राइफ, फुल ऑफ, भरा हुआ। बैबलिंग यानी टॉकिंग रैपिडली, जल्दी जल्दी बोलना। टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है रैपिड फ्लो ऑफ वाटर, पानी का तेज बहाव। स्टर टू लाइफ, बिकम अलाइव विथ साउंड एंड मूवमेंट, जिंदगी के आसार दिखाई देना। In last stanza, the poet described the river in the month of Ashar. Dark clouds gathering in the sky. It starts raining. The water level of the river rises very high. The river water flows with great speed. The wind blows very noise, and the banks of river turns muddy. Speedy water helped to grow the new plants and trees on the bank of the river. All the villagers gather to welcome the rain and new life beside the river. The wind blows very noise, and the banks of the river turn muddy. Speedy water helped to grow the new plants and trees on the bank of river. All the villagers gather to welcome the rain and new life beside the river. आषाढ़ के महीने में आसमान पर बादल जमा होते हैं, जिसकी वजह से बारिश शुरू होती है। नदी का पानी तेज़ी से बहता है, हवा तेज़ चलती है। बारिश होने की वजह से नदी में कीचड़ भी जमा हो जाता है। तेज़ पानी की वजह से नदी के किनारे पौधे और दरख्त उगाते हैं। गांव के जो लोग होते हैं बारिश और नई ज़िंदगी को खुशामदीद कहने के लिए जमा होते हैं। थैंक यू। अगर आपको इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।